Good morning, everyone, and welcome to the class. As you know, we have a revised syllabus, as I told you earlier, also. This is our first chapter, isn't it? This Constitution, why and how. है ना? And now you will see that these two chapters, some of the contents of these two chapters, Constitution as a living document and the philosophy of the Constitution, that also came under this first chapter only. है ना? तो अभी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ के जो कंटेंट्स थे वो हमने कर लिया जो जो कि आपके रिवाइज सिलेबस में है देन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट उसके जो पोर्शंस थे वो भी हम कर चुके हैं है ना एंड नाउ वी आर डूइंग द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि हमें अभी कुछ जो लास्ट सेगमेंट्स था जिसमें हम मेन फिलोसफीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे दैट रिमेन्स टू बी डन जिसमें हमने कुछ कर लिए थे थ्री पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट वी कैन से the first philosophy of Indian Constitution is individual freedom है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस दिया और इसकी जो अगर फाउंडेशन हम देखें तो ये फाउंडेशन तो उसी समय से स्टार्ट हो गया था जबकि हमारा नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ था है ना सो राम मोहन राय ने ही स्टार्ट किया था जो कि हम कह सकते हैं 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से इस तरह की डिमांड्स आ रहे थे कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए है ना और फिर रॉलेट एक्ट जो आया उसको भी जो अपोज किया गया इसी बेसिस पे किया गया क्योंकि वो रॉलेट एक्ट जो था आर्बिट्रेरी अरेस्ट का पावर देता था गवर्नमेंट को तो हम हमें वी मस्ट हैव राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट है ना तो इसके लिए रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ तो अगर हम देखें तो इंडिविजुअल फ्रीडम की जो बात करते हैं वो उसका जो बेस था उसकी जो फाउंडेशन थी वो नेशनल मूवमेंट के समय में ही रख दी गई थी है ना और इसलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें इस इन सारे इंडिविजुअल फ्रीडम्स को बहुत ही प्रॉपर प्लेस जो है वो दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में and then we have also discussed about the social justice because our constitution yes it gives emphasis on individual liberty on the freedom of individual but at the same time social justice is also a very important feature of our constitution because actually we can say that mm, we have made a balance between individual freedom and social justice है ना this is the reason our constitution provides for reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes है ना so our makers the constitution makers they were very much aware that the condition which was prevailing in our society um, mm, mm, where age-old injustice was prevailing. A particular group was facing such a discrimination from centuries. So, in order to bring equality, it was not sufficient only to give right to equality. What is important, what is necessary, that there must be some constitutional measures to advance the interest of the these deprived section and for that purpose only this policy of reservation has been adopted by our constitution makers and then we have also discussed about this philosophy of our constitution that is respect for diversity है ना our constitution encourages equal respect between the communities but here we as we have seen that it is not the nature of the communities to uh, consider themselves as equal because some kind of hierarchy always exists
one community consider itself as higher than the another community. So this kind of hierarchy exists. So it is not possible कि इस कह देने से वो जो इक्वालिटी है वो एग्जिस्ट कर जाएगी, या फिर एक चीज ये भी हमने देखा था कि हम कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज ही ना करें, जैसे कि बहुत सारे वेस्टर्न लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसा किया गया है, बट हम ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है हमारे सोसाइटी के लिए, बिकॉज इंडियंस जो है वो कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम उनको रिकॉग्नाइज ही ना करें, हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, है ना। सो हमने किया भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें रिलीजियस कम्युनिटीज को जो राइट्स दिए गए हैं, fundamental right of religious communities to establish and run their own educational institute. This is one of the rights which are given to the uh, to the communities, है ना, जो रिलीजियस कम्युनिटीज है उनको ये राइट्स दिए गए हैं। तो जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, एक्सेप्ट करता है, और ये डाइवर्सिटी को सप्रेस करना इसका एम नहीं है ना। सो ये प्रोविजन शो करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलीजन को सिर्फ एक प्राइवेट मैटर नहीं कंसिडर करता है, क्योंकि अगर प्राइवेट मैटर कंसिडर करा जाता रिलीजन को, तो रिलीजियस कम्युनिटीज के राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं मिलती, है ना। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट किया है। इसके बाद जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में हम सबसे पहले तो हमें ये यू 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 मस्ट बी अवेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट जो होते हैं वो उसका ये मतलब होता है कि जो रिलीजन है ना, दैट इज all the religion are equal in the eyes of the state, and the state has no religion of its own। किसी स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, हर रिलीजन जो है वो सेम है, इक्वल है, एंड जो रिलीजन होता है ना उसको प्राइवेट मैटर माना जाता है। रिलीजन इज अ प्राइवेट मैटर एंड द स्टेट हैज नथिंग टू डू विथ दिस। ठीक है। सो अगर हम देखा जाए तो क्या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस हिसाब से इस अगर इस क्राइटेरिया पे हम रखें कि जो सेक्युलर स्टेट्स होते हैं वो रिलीजन को प्राइवेट अफेयर मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्राइवेट अफेयर नहीं माना जा रहा है, क्योंकि रिलीजियस कम्युनिटीज को कुछ पावर्स दिए गए है ना। तो इसको कुछ कुछ नॉट पावर्स, कुछ राइट्स दिए गए हैं। तो जो रिलीजियस कम्युनिटीज को जो राइट्स दिए गए हैं वो ये बता रहा है कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज रिलीजन जो है वो हमारे यहाँ प्राइवेट मैटर नहीं है ना। तो इसका ये मतलब क्या समझा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर नहीं है? नहीं, ये गलत होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, और चूंकि शुरू में स्टार्टिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सेक्युलर टर्म यूज नहीं किया गया था, still we have a secular constitution, because सेक्युलरिज्म का मतलब यही होता है कि स्टेट और रिलीजन के बीच में रिलेशनशिप कुछ भी नहीं होना। देयर शुड बी separation between the state and the religion। why this separation? In order to protect values like individual freedom, citizenship rights of individual, these should be protected। ये तभी इनका प्रोटेक्शन पॉसिबल है जबकि रिलीजन जो है वो स्टेट जो है वो रिलीजन के मैटर्स में इंटरफेयर ना करे, रिलीजन स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर ना करे, है ना। तो हमने इस सेपरेशन को एक्सेप्ट किया है, लेकिन यहाँ पर फिर से एक डिफरेंट एस्पेक्ट है इंडियन सेक्युलरिज्म का। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात हो रही है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नीदर द रिलीजन विल इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ स्टेट, नॉट द स्टेट विल इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, है ना। बोथ ऑफ देम शुड स्टे अवे फ्रॉम वन अनदर। The state should not intervene in the domain of religion, and the religion should also not dictate a state policy or influence the conduct of a state and in any manner.
है ना। अब इसको हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन कह रहे हैं, बट नाउ इफ वी कंसिडर द Indian constitution, what we find that this strict separation is not there, है ना। क्यों नहीं है, पहले हम ये समझेंगे कि इस स्ट्रिक्ट सेपरेशन के पीछे रीजन क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस behind strict separation between religion and state। आखिर स्ट्रिक्ट सेपरेशन क्यों होना चाहिए? It should be there so that the freedom of individual can be safeguarded। क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं हो, मान लो कि रिलीजन जो है वो स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर करता है, तो ऐसे कंडीशन में जो मेजॉरिटी वाली जो रिलीजियस कम्युनिटी होगी उसका डोमिनेंस होना बहुत ही नेचुरल है ना। जो स्टेट्स ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियंस को सपोर्ट करते हैं वो उनको पावरफुल बनाते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें हम ये देखेंगे कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो लाइफ पे बहुत बुरी तरह का इम्पैक्ट होगा अगर रिलीजन को छोड़ दिया जाए स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर करने का, है ना। सो इस तरह के कंडीशन में जो स्टेट है वो इंडिविजुअल के फ्रीडम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। Okay, so when religious organization begin to control the religious lives of individual, when they start dictating how they should relate to God or how they should pray, individuals may have the option of turning to modern state for protecting their religious freedom। ठीक है, जब तक religious organizations जो हैं वो हमारे religious matters को control कर रहे हैं, हमारे religious lives को control कर रहे हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है ना। religious organization are controlling the religious lives, so in that case individual have the option of turning to the modern state for protecting their religious freedom। अगर उनको कुछ भी दिक्कत आ रही है उनके religious freedom पे, अगर किसी तरह का curtailment हो रहा है, तो they can turn to the state, है ना। लेकिन suppose the condition that if the state has already joined hands with the religious organization, then how this state would help the individual? In that situation, the state will not be in a condition of helping the individual in protecting their rights। So, what we see that in order to protect the religious freedom of individuals, the state must not help religious organization। Okay, if the state has joined its hand with the religious organization, then the religious freedom of individuals will be curtailed completely। what is what is required is that the state should not tell religious organization how to manage their affairs, है ना। that is not important, that is not required that the state should tell them ki how to manage their affairs, because that will also against the concept of religious freedom। what should be done, that the state must not hinder religious organizations either, है ना। उसको ऑब्स्ट्रक्ट भी नहीं करना है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। न तो आप हेल्प करिए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को, न ही उनको ऑब्स्ट्रक्ट करिए। बिल्कुल आपको कैसे रहना है, आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है। यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस विथ द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, नीदर हेल्प देम नॉर ऑब्स्ट्रक्ट देम, but to maintain a distance with the religion। And why this distance is important? So that the religious freedom of individuals can be maintained। Individuals should be able to enjoy the religious freedom।
Okay, so what we find that the conditions which were prevailing in India were different, and the challenges which we were facing at the time of constitution making were different, and that is the reason our constitution makers had worked out an alternative conception of secularism. The secularism which we have adopted is different from the model of secularism which is adopted in Western countries. Western model of secularism and Indian model of secularism. We have our own model of secularism, and there is difference between these two. है ना? So there are two ways in which we see that the Indian secularism has departed from the Western model. And what are these two ways? What are these two reasons? First of all, we will see rights of religious groups. As we have seen that our constitution makers have recognized this inter-community equality. है ना? All the communities are equal. Then only equality between individuals can be attained. है ना? जब community equal होंगे तभी उस community के जो members हैं वो भी equal होंगे. So uh, we see that a person's freedom and his sense of self-respect is directly dependent upon the status of his or her community. है ना? अगर हमारी community का status equal status है तो हमारे अंदर sense of self respect आता है, हमारे पास freedom होता है ना? But if we see कि one community is dominated the another community, then the community which is being dominated, their members will be uh, will have lesser freedom, है ना? क्योंकि वो they are dominated तो उनके पास freedom भी कम होगा. और ऑन दी अदर हैंड देखते हैं कि अगर उनके रिलेशंस इक्वल है, कम्युनिटीज के बीच में इक्वल रिलेशनशिप है, किसी भी तरह का कोई डोमिनेशन नहीं है, तो क्या होगा, जो उसके मेंबर्स हैं उनको फ्रीडम भी ज्यादा होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट का सेंस होगा, डिग्निटी होगी, डिग्निफाइड लाइफ दे विल लीड, है ना? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारे रिलीजियस कम्युनिटीज को राइट्स देता है, जैसे राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. दिस राइट इज गिवन बाय द आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज, है ना? एंड फ्रीडम जो हमारे कंट्री में है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी. अगर सिर्फ इंडिविजुअल के फ्रीडम की बात करेंगे तब ये जो रिलीजन है वो प्राइवेट अफेयर्स बन जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ कम्युनिटी की भी रिलीजियस फ्रीडम की बात होती है ना? कम्युनिटी के रिलीजियस राइट्स की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कम्युनिटी को रिलीजियस राइट, तो इसका मतलब हमारे यहाँ रिलीजन को प्राइवेट अफेयर नहीं माना जा रहा है. बट उस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री सेक्युलर नहीं है, क्योंकि हमने सेपरेशन किया है ना? रिलीजन और स्टेट के बीच में सेपरेशन है, बट यहाँ पर फिर से हमारा डेविएशन है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म से, जहाँ पर हम देखते हैं कि हम हमारा जो सेक्युलरिज्म है उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है. म्यूचुअल एक्सक्लूजन दोनों को एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं रखना है. बोथ रिलीजन एंड state are completely separated from each other, है ना? But in our country this separation is not maintained in a mutual manner, बिकॉज हमारे यहाँ क्या है कि जैसे कुछ ऐसे रिलीजियसली सैंक्शनड कस्टम्स थे हमारी कंट्री में, लाइक अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी जो कि हिंदुइज्म में प्रैक्टिस किया जाता था, दिस अनटचेबिलिटी हैज रिलीजियस वी कैन से सैंक्शन, है ना? ये धर्म कहता था. जिस तरह से उस समय हिंदू धर्म का जो इंटरप्रिटेशन हुआ उसमें ये कहा गया कि यस, हिंदू जो होंगे अपर कास्ट हिंदू है उनको लोअर कास्ट हिंदू से
टच नहीं करना चाहिए, अगर वो टच कर जाते हैं तो उनका धर्म खराब हो जाता है। इस तरह की जो चीजें थी वो उस समय की सोसाइटी में प्रेवलेंट थी, है ना। And because of this untouchability, we find that the people belonging to this lower caste, they were not allowed to enter the public places, like village के अंदर भी उनको नहीं घुसना होता था, टेम्पल में नहीं वो जा सकते थे, they were not allowed to enter schools and all। तो इसके कारण क्या हुआ, because of this the people belonging to this community, they were deprived of the basic dignity and self respect, है ना। उनकी उनकी डिग्निफाइड लाइफ नहीं थी, उनकी लाइफ में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ऐसे जो कस्टम्स थे वो हमारी सोसाइटी में बहुत ही डीप रूटेड थे, है ना। और ये पूरी तरह से मतलब सोसाइटी में बहुत ज्यादा इसको वैल्यू दिया जाता था, इस अनटचेबिलिटी को। और अगर स्टेट इसमें इंटरवेंशन नहीं करती तो ये अनटचेबिलिटी की जो सिस्टम है वो कभी भी खत्म नहीं होती हमारी कंट्री से, है ना। तो इसके लिए क्या जरूरी हो गया कि इस अनटचेबिलिटी जो इतना जिसको कहेंगे इनह्यूमन वे ऑफ ट्रीटिंग पीपल था, दैट नीडेड टू बी एंड, है ना, उसको खत्म होना एकदम जरूरी था। और ये खत्म कभी भी सोसाइटी इसको खत्म नहीं करती, इसका खात्मा, इसका एंड तभी होता जब स्टेट उसमें इंटरफेयर करता, और यही हुआ, है ना। The same thing happened in our constitution. Article 17 was is there in our constitution, which says that untouchability is prohibited. Now this is the interference of the state. Where the state is interfering? The state is interfering in the affairs of religion, है ना। तो ऐसा जो इंटरवेंशन है, इसका पर्पस क्या है? द पर्पस इज पॉजिटिव। This intervention of state in the religious affairs is not for any negative reason. It is for the positive purpose, because um, it is causing upliftment of a particular group of people. So it's positive in nature. So the state could also help religious communities by giving other than this, ये तो एक हो गया कि स्टेट का इंटरवेंशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो हमारी सोसाइटी की जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, कुरीतियां जिसको हम कहते हैं, वो बैड प्रैक्टिसेस को एंड कर रहा है। In this way, the state is interfering, and this interference is on the positive basis. Other than this, could also the state could also help religious communities by giving aid to educational institutions run by them. This is also given in the constitution that if any religious communities is establishing its educational institute, then the state will have to give it grant if it is required by the religious community। तो स्टेट को उसको एड देना होगा, ग्रांट देना होगा। The state cannot deny aid on the basis of this, that the educational institute is established by a religious community। तो स्टेट जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है, तो वो एक रिलीजियस कम्युनिटी के तरफ से स्टैब्लिश किए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एड नहीं देगी, ऐसा नहीं कह सकती। ये हमारे इट इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि स्टेट जो है वो इस बेसिस पे मना नहीं करेगी, स्टेट को उसको देना ही पड़ेगा एड, है ना। सो स्टेट जो है वो हेल्प भी कर सकता है और हिंडर भी कर सकता है रिलीजियस कम्युनिटीज को। सर इसमें सोचने वाली ये बात है कि ये हेल्प कर रहा है या उसके कामों को रोक रहा है, वो इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा एक्शन जो है वो किस वैल्यू को प्रमोट कर रहा है। अगर रिलीजियस कम्युनिटी का कोई एक ऐसा एक्शन है जो कि इनइक्वालिटी की वैल्यू को प्रमोट कर रहा है, तो वो उसको हिंडर करेगा, है ना। और अगर रिलीजियस कम्युनिटी का कोई काम ऐसा है जिससे कि अच्छी चीजें हो रही हैं, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसने ओपन किया है, इट्स अ गुड थिंग, पीपल विल बिकम एजुकेटेड, है ना, तो ये अच्छी चीज है। तो इसमें वो क्या करेगा, स्टेट हेल्प करेगा, उल्टा काम नहीं करना है। जहां पर आपको रिलीजियस कम्युनिटीज कुछ ऐसी गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिससे कि कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रहा है, वहां पर आप उसको हिंडर करिए। और जहां पर रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे कि
as a whole we can say कि society is going to get benefit from this act of religious community. तो this act of religious community should be helped, है ना, उसमें हेल्प मिलना चाहिए स्टेट का. तो हमारे यहाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं काम करता. इन आवर कंट्री म्यूचुअल एक्सक्लूजन डज नॉट वर्क. Instead of mutual exclusion, we see there is a new concept in our country. अगर हम सेक्युलरिज्म में देखें तो हमारे कंट्री में एक नया कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डिस्टेंस, है ना. व्हाट इज दिस प्रिंसिपल डिस्टेंस? इसका मतलब ये होता है कि द स्टेट विल बी एट अ डिस्टेंट, है ना. स्टेट जो है वो एक दूरी बना के रखेगी सभी रिलीजियंस, लेकिन ये दूरी इतनी भी नहीं हो जाएगी कि वो जो रिलीजियंस है, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, वो कुछ भी करे और स्टेट उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी. ऐसा इतना दूरी भी नहीं रखना है. दूरी आपको प्रिंसिपल डिस्टेंस रखना है. इतना डिस्टेंस रखिए कि आप बिना वजह के उसके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करिएगा, है ना. लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आप उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं. सपोज अगर कुछ भी गलत हो रहा है किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर, तो उसको रोका जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना. तो अभी तक हमने तीन मेन जो हमारे कोर फीचर्स है, दीज आर द थ्री कोर फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन which have been discussed by us. The first is our constitution gives emphasis on liberal individualism, है ना. इंडिविजुअल के फ्रीडम को वो इम्पोर्टेंस देती है कि in order to achieve the complete development of personality, it is very much important for any individual to have freedom, है ना. So our constitution reinforces and reinvents forms of liberal individualism, है ना. Second, our constitution upholds the principle of social justice. Actually we are maintaining a balance between the social justice and the individual liberty. And the third, which we see, yes, this is the principle of social justice. Okay, and the third point is we see that the background of intercommunal strife में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था. उस समय हिंदू मुस्लिम की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी बिकॉज पार्टीशन हो गया था. पार्टीशन के साथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन हो रहा था और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन के कारण क्या हो रहा था कि बहुत ही हाई लेवल का टेंशन वायलेंस हो रहा था. मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड. सो द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने ये अपने कमिटमेंट को अपहोल्ड किया कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, है ना, उनके राइट्स को वो प्रोटेक्ट करेगा. So this indicates that the framers of constitution were more than willing to face the challenge of what more than 4 decades later has come to be known as multiculturalism. आज के समय में हम इस मल्टीकल्चरलिज्म को ज्यादा फेस कर रहे हैं क्योंकि आज डाइवर्सिटी और बढ़ती जा रही है ना. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, they were the visionary people who were seeing the future from their eyes, and accordingly they have made provisions for it. Okay? There should be respect for diversity, there should be the state should be secular and all. Okay, and now we come to the next important feature of our constitution. This is first uh, the commitment to universal adult franchise, है ना. And it was really not easy to achieve this universal adult franchise because we find that this right to vote, if we see in the western democracies, this right to vote was not given to each and all people, each and everyone. It was given to the people gradually. Like if you remember,
फ्रेंच रेवोल्यूशन विच यू हैव डिस्कस्ड, विच यू आर नोइंग इन डिटेल, है ना। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद 1791 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और इसमें जो मेल मेंबर्स थे और जो सिटीजन्स थे और जिनके पास प्रॉपर्टी था, वेल्थ था, उनको ही राइट टू वोट मिलता है ना। सभी मेल मेंबर्स को भी नहीं मिलता है। फिर जाके लड़ाई लड़ते लड़ते 1848 में जो स्लेव्स होते हैं उनको भी राइट टू वोट मिलता है, लेकिन फिर भी औरतों को नहीं मिलता है। वुमेन वर एबल टू गेट दिस राइट टू वोट ओनली इन द ईयर 1946 इन फ्रांस, है ना। इसी तरह से इंग्लैंड और अमेरिका में भी जो राइट टू वोट मिला वुमेन को, बहुत देर से मिला, 1920s में मिलता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसके लिए कुछ भी क्राइटेरिया नहीं रखा। ओनली टू क्राइटेरिया वर देयर, लाइक फर्स्ट वाज द क्राइटेरिया ऑफ सिटीजनशिप एंड द सेकंड वाज द क्राइटेरिया ऑफ एज, है ना। एज और सिटीजनशिप की क्राइटेरिया को छोड़ के और कुछ भी इसके अंदर नहीं था। जो भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 21 ईयर्स का प्रोविजन रखा गया था कि जो भी 21 ईयर्स से अबव एज के होंगे और इंडिया के सिटीजन होंगे उनको राइट टू वोट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज हमारी इस कारण भी क्रिटिसिज्म होती है, वेस्टर्न जो कंट्रीज के लोग हैं, दे क्रिटिसाइज अस। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑफ द ओपिनियन कि जो हमारा लाइक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबको राइट टू वोट दे दिया गया, जो कि गलत है।